So you're saying कि data हमें बता रहा है कि अगर early education बेहतर है, strong है, तो there are more chances that kids won't drop out. If you make it better, it has two effects. One is कि आपकी directly skills improve होती हैं, ठीक है? मतलब you are more capable now. But the second effect is you stay in school longer. तो वो और बढ़ती है ना. Which is very चौथी interesting. जमात में आपने चीजें सीखी जो improve हुई वो तो हो गई, लेकिन फिर you stay in school longer. आप इन दोनों को combine करें, then you see what happens in the labor market. So what you see is an increase in their wage rates. Wow. Yeah. So what you see is about a 12 to 13 percentage point increase in their wage rates. That's huge. We're very excited to have Dr. Tahir Andrabi with us today. He's a professor of economics at Pomona College. He's the board member and co-founder of SERP. And he's also one of the principal investigators of the LEAP study, which is the longest running study on education in Pakistan. Thank you so much, Tahir, for being here today. Pleasure. Since you've done years and years of research on education in Pakistan. जब रिसर्च जो है और इशू जो है दैट वाज मोर फोकस्ड अराउंड एनरोलमेंट कि बच्चे इनरोल कर रहे हैं स्कूल में या नहीं, यू took up a different lens altogether, which was on learnings. So what made you shift that lens on education in Pakistan? लेकिन पाकिस्तान में जो है ना, people's priors and people's framing views on education are really being challenged by what's happening on the ground. So throughout our work on education, Mera, and as you know, most of my work is with the Asim Khaya at Harvard Kennedy, who is also a founder of SERP and now the chairman of the board, and Jishnu Das at Georgetown. We've been working together for so many years, over 2 decades now. But usme bhi what I think what is important is to let the ground reality dictate what your views are. So when I first started, I thought that enrollment was an issue. Us waqt the general question was, especially in rural areas. So I was always interested in people who are kind of really can't help themselves, people who are below the poverty line. So that's always been my focus, is to look at the large number of people who are really not making it in life. And so the idea was that गांव में है, इक्का दुक्का school है, and I'm talking of almost 30 years ago. As a young person, so I would love traveling in Pakistan. This is one of the real joys of doing development research, is that you really go out in the field. So I traveled in a lot of localities, urban, rural, and all over Pakistan. And I remember going to Mianwali, outside Mianwali, in some villages, about 30, 40 miles from the city, very rugged area, considered remote. And then when I went there, I saw some private schools. In a place where this NGO was telling me कि लोग जो है वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, वो एक गली छोड़ के जो है, और अब वो बिल्कुल एक गाँव था और काफ़ी रिमोट. तो मैं जब वहाँ गया तो मैंने उनसे पूछा, और फिर इस NGO से भी पूछा कि नहीं यहाँ कैसे बच्चे आए हैं, आप तो मुझे इतना लंबा लेक्चर दे दें कि लोग बच्चों को भेजते नहीं हैं. तो the more I looked into it, it looked like अगर वहाँ पे एक टीचर है जो लोकल है, कोई लड़की होती थी, यंग थी, उस बारे में ये टीचरें जो थी 17-18 साल की लड़कियाँ होती थी. So if you could find a teacher who was local, and if you could find 3 or 4, that's a school. So, the real constraint then we started to think was really the teachers. So it didn't look like and then boom, the enrollment problem in the village kind of disappears. So I thought that the enrollment issue was a little start thinking of that lens. You got to just go beyond. I think it's a good entry point. You can start thinking about enrollment, but you can't stop there. It leads you to more questions. And so one of the big questions was, we started working then in LEAPS. We started looking at all these villages, started creating a representative sample in Punjab, in these 3 districts, Attock, Faisalabad, and Rainier Khan. And one of the driving questions was, when we did a full census
of like 120 villages. This is like Wow, that's a big 100,000 number. It's the three of us. There was no government. The secretary helped us, but we did it ourselves. This is before there was SERP. This is before we had RA. This is we were all young and we were crazy. I mean, if we had known how difficult it was, we probably wouldn't have done it. But anyway, we did it. And then we created a household sample out of it and then started looking at schools. And there were two things that came out, right? Okay, the village landscape, I'm talking 2003 now. The village landscape was very different from what people were thinking it was. With this idea of a solitary school, a single government school, and the big decision of whether to send the girl to school or not. It looked like that the village landscape was quite rich in terms of educational opportunity. छोटे छोटे गांव है भाई ये, लेकिन आप वहाँ जाएं तो 2, 3, 4 प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, 2,3 गवर्नमेंट स्कूल होते हैं. I think that's still surprising for a lot of us to know. I think it is, but let the data speak. And I think the more you look at the data, and this thing is not stopping. We can come back to it. So then it looked like the question that really drove me at that point was कि जब हमारा जो household sample था, because we were looking at, we were trying to focus on kids ages 7 to 12 at that time. So if you look at the mothers, ठीक है, 75% of the mothers in that sample were illiterate, like zero, صفر, okay, education. So then the interesting question became, yaar, कि अगर ये educational choice का इतना complex decision है, you could write like a computer algorithm program कि भाई ये इसमें किस तरह choose करें. So the big question to me was कि यार ये माँ अनपढ़ है, how the hell are they making this decision? And if you have kids, how do you know your kid is learning अगर आपको खुद पढ़ना नहीं आता? So that became like a big question for me. How do we really think about it? One thing that really inspires me about Leaps is that कि community में जाके, because a lot of times we see कि जितने भी development projects हो रहे हैं, those are based around हम आपको बताते हैं कि आपका मसला क्या है. So you really took that time to go into the community, understand the dynamics कि household में क्या dynamics हैं. I think it is. मतलब it's essential. मतलब मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जब मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, इंटेलिजेंट लोग, ऐसा नहीं कुछ नहीं पता. But this idea के presupposing a view on these people कि वो कौन है, क्या है, वो गलत है. हम empirical है. So that's where, so we really need to really explore what they are thinking. So this is the first thing you got to do, is to really map out what we call the ecosystem. ठीक है. वो हमने किया. उसके बाद जाके आप फिर देखते हैं कि इन सारे relationships हैं, ये पेरेंट्स के, टीचर के साथ, स्कूल के बच्चे के साथ, बच्चे के स्कूल वाले के प्रिंसिपल के साथ, उनकी तनख्वाहें आ रही हैं. These are all what one calls relationships. Relationships is how two actors on a node are connected, right? That's a relationship. ठीक है? And then you see, is that relationship working? And if not, what's the friction? So then what to do is to identify those frictions. And that's how Leap started. We started identifying some very, what to us looked like very, क्या नाम है, relevant and salient frictions. And what were those frictions when you went? देखिए, friction, पहली जो friction थी, जो हमारा I think landmark काम है, really, is, so पहली मेरी ये थी, जब coming back to what I just said, कि ये माँ है, ये ज़्यादा अनपढ़ है, तो इनका मतलब ये, how do they judge school quality? इनको कैसे पता होता है कि ये स्कूल अच्छा है या बुरा है? ठीक है. अब ये है कि बहुत सारे होते हैं कि distance really matters. क्या बच्चे को छोड़ के आना है, लोगों के पास गाड़ियाँ शाड़ियाँ तो है नहीं, right? So this is a very big difference between urban and rural, ना? अर्बन में चले जाएं, लाहौर में, तो मैं अमेरिका में टॉक दे रहा था, तो मैंने कहा कि सारी दुनिया में जो रश आवर होता है वो 5 बजे होता है ना, जब दफ्तर बंद होते हैं. लाहौर में कब रश आवर होता है? 2 बजे, स्कूल टाइम, स्कूल बंद होते हैं, राइट? तो आई मीन अर्बन एरिया में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन एरिया इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम. व्हेन वी कैन कम बैक टू दैट टू हैव सम थॉट्स ऑन दैट. बट हमारे यहाँ एक जीरो डिस्टेंस हो गया, लेकिन उसके बाद इज क्वालिटी, राइट? हमारे जो पेरेंट्स हैं,
चाहे वो अनपढ़ हैं, दे एस्पायर फॉर क्वालिटी। ये भी कहना गलत है कि जी ये जो है कि एक गरीब आदमी है, गांव में बैठे हुए है, पिंड में है, कि जी उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। नो, so that's what we started saying, thinking that these parents are actually active agents. लेकिन हम उनको कहते हैं बाउंडेडली एक्टिव है, दे आर एक्टिव, लेकिन उनसे सब कुछ हो नहीं रहा। ये काफ़ी मुश्किल प्रॉब्लम है ना कि आप अनपढ़ है, ये है, वो टीचर का आपको मतलब हाउ डू यू जज? So one of the things that became the basis of what became our landmark report card study. तो जो रिपोर्ट कार्ड स्टडी है उसमें हमने कहा कि यार अगर इनको नहीं पता ये फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन को दूर करते हैं। वो फ्रिक्शन को किस तरह दूर करते हैं? हमने जो हमारे लीव्स के गांव थे उसमें एवरी सिंगल थर्ड ग्रेडर इन द विलेज को हमने टेस्ट किया और काफ़ी इलैबोरेट है। That's a big sample size. सैम्पल साइज था, बिग सैम्पल साइज था, बट इट वाज अ यूनिवर्स। मतलब उस लिहाज से सैम्पल नहीं था, मतलब इट वाज यूनिवर्स ऑफ ऑल द किड्स जो हमने टेस्ट किया और काफ़ी डिटेल में और बड़ा मेहनत करके टेस्ट किया। उस टेस्ट की कंस्ट्रक्शन जो थी उसमें भी हमने बड़ा जोर दिया। वो पाकिस्तानी जो टेस्ट है, अगर आप तीसरी जमात का टेस्ट देखें उस वक्त, अभी भी जैसे यही हाल है, मैंने अभी देखे हैं केपी में, पाकिस्तानी बच्चों को जब आप टेस्ट करते हैं तो वो ग्रेड लेवल पर टेस्ट करते हैं, ठीक है, वो उनके इसको कहते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, ऐसा लोग बनाए हुए हुकूमत ने जी उसके बेसिस पे। मसला क्या होता है कि उसे ये नहीं पता चलता कि इस बच्चे को एक्चुअली आता कितना है, ठीक है। कुछ बच्चे तो जो ग्रेड लेवल पे हैं उनका तो पता चल जाता है कि जी ये तीसरी जमात पे है, कोई इक्का दुक्का होगा, शायद आइंस्टाइन वो चौथी जमात के लेवल पे होगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो ग्रेड लेवल पे नहीं है हमारे पाकिस्तान में, वो नीचे होते हैं। तो उनका क्या होता है, उनको क्या कहते हैं, वो फेल हो गए हैं, राइट। पाकिस्तान में ये मैंने एक बार गवर्नमेंट से बात की थी, तो मैंने कहा जी हाँ मुझे वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज़ वेरी इंटरेस्टेड अंग्रेज़ों की तरह कि दे आर इंटरेस्टेड इन पिकिंग विनर्स। यहाँ जो बोर्ड टॉपर होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाते हैं वो तो हर वक्त उसी पे होता है कि ये इस बच्चे की तस्वीर है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है। और भाई द रियलिटी है कि आपका जो मॉडल ना स्टैटिस्टिक्स मतलब मोड जो सबसे बड़ा जो एक मैथ्स है बच्चों का, वो आपके इम्तिहान में फेल हो रहा है। अच्छा उसको पता ही नहीं है, मतलब आप उसे पूछें कि भाई ये बच्चा ये क्या है जी, ये फेल हो गया, ये बहुत नालायक है, ये स्लो लर्नर आजकल पाकिस्तान में कहते हैं, ये है जी। भाई किसको आता कितना है, मतलब उसको आपने बिल्कुल ही नीचे फेंक दिया। So then the question was कि so we constructed a test right from the beginning, right, which is कि हम बच्चे का एक्चुअल लर्निंग लेवल का देखें। अगर वो बच्चा जो है वो चौथी जमात में है, उसको बिल्कुल अगर बे भी नहीं आती, ABC भी नहीं आता, 1 2 3 भी नहीं आता, तो हमें पता होना चाहिए, मतलब वो तो बेचारा निकम्मा हो गया ना, उसको तो फेल कर दिया। So we constructed a test which was a continuum, और हमने वो टेस्ट में सवाल डाले सारे ऐसे कि हमें उस लेवल पे वेरिएशन समझ आ जाए। पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम इज वेरी गुड एट डिस्टिंग्विश बिटवीन, आई वुड से अबव द 90th percentile, मतलब जैसे आप लोग हैं, वो ये है कि जो लायक बच्चे हैं उनमें बड़ी डिस्टिंक्शन होती है यहाँ पे कि जी ये लेवल में कितने स्टार आए तो क्या हुआ, तो ये हुआ तो वो उसमें सिस्टम ठीक है, वो उनको डिस्टिंग्विश करता है। एनीवे वो रिपोर्ट कार्ड बना, उस रिपोर्ट कार्ड में क्या चीज़ें थी, उसमें रिपोर्ट में 3 चीज़ें थी। पहली ये थी कि जी बच्चे की कारकर्दगी, ठीक है, तो आपको एक तो एब्सोल्यूट लेवल पता चलता है कि आपका बच्चा किस लेवल पे है, ठीक है, बच्चे का लेवल होता है। लेकिन मोर देन दैट उसके बाद ये था कि जी आपका बच्चा जो है उसका जो है हाउ इज दैट किड डूइंग रिलेटिव टू द अदर किड्स इन योर क्लास। तो आपको ये समझ आए कि ये बच्चा क्लास में कहाँ फिट होता है, किस लेवल पे है, ठीक है। हमारा ख्याल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने की वो ये थी कि देन हाउ इज़ द आपके स्कूल की जो थर्ड ग्रेड है, हाउ डज दैट कंपेयर टू अदर थर्ड ग्रेड किड्स इन द विलेज। That's very interesting. ठीक है, अदर थर्ड ग्रेड किड्स इन द विलेज। और फिर एक और भी हमने किया विच इज़ कि हाउ डज द विलेज कंपेयर टू बाकी लीव्स विलेजेस। तो आपको डिफरेंट लेवल्स पे ये चीज़ समझ आ जाए। और उसके बाद जो रिपोर्ट कार्ड की बैग थी उसमें जितने भी गाँव के स्कूल थे, ठीक है, कईयों में 3 थे, कईयों में 4 थे, 5 थे, ये थे, ये बड़े बड़े गांव हैं। पंजाब में बाय द वे दिस इज आई वुड से नाउ लाइक 80% ऑफ पंजाब पॉपुलेशन रूरल इज लिविंग इन अ विलेज वेयर देयर स्कूल चॉइस। इस तरह का एक रिच दिस इज और ये बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, ये बहुत बढ़ रहा है। आई कैन टॉक अबाउट दैट। उसमें स्कूल की लिस्ट थी कि स्कूल की लिस्ट है कि ये गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल का ये बच्चों का लेवल है अंग्रेजी उर्दू मैथ में, और उन्होंने उनकी रैंकिंग की कि ये इधर है
फिर कोई अगर वो कायदे आज़म स्कूल या सनशाइन स्कूल जो भी प्राइवेट स्कूल है उनके ये पूरी एक लिस्ट थी, वो हमने हर पेरेंट को दी और फिर हमने लिटरली जिसको कहते हैं वी डिड लाइक दीज टाउन मीटिंग्स के सबको बुला के जितनों को हम कर सकते थे, राइट। सो वो मतलब इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन, राइट। सो इंफॉर्मेशन फॉर इंफॉर्मेशन टू वर्क इट हैज़ टू डिफ्यूज। ये तो नहीं हो सकता ना कि इफ़ यू पाकिस्तान में होता है कि जी वो आप हमने तो किया है जी, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट क्या करते हैं जी हमने तो ये छाप दिया, वो आपको ढूंढना पड़ता है कि किधर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, इस तरह नहीं। इंफॉर्मेशन हैज़ टू रीच द पीपल, ठीक है, कर दिया हमने। अब दिस वाज अ रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट, सो हमने तकरीबन 50-55 गाँव में ये किया और 50-55 जो के करीब जो थे वो कंट्रोल थे। एंड देन व्हाट वी डिड इज वी टेस्टेड देम अगेन, नेक्स्ट ईयर वी वेंट बैक टू द सेम विलेजेस, सेम किड्स, आई टेस्टेड देम अगेन, वो फिर उनको बताया कि क्या हुआ है, एंड देन वी लेट द सिस्टम रन, ठीक है, कि अब देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है। उसका रिजल्ट जो निकला मतलब इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस के जो मैं बात कर रहा था कि द विलेज एज अ डायनामिक इकोसिस्टम, ये आप उसको ये जो पाकिस्तानी कौम है, डायनामिक का मतलब ये है कि अगर कोई वहाँ आप चेंज लेके आए तो वो उसके फिर रिस्पॉन्स आता है एक, ये नहीं है कि वो मरे बैठे हैं। एंड दैट रिस्पॉन्स वाज, I mean, I tell you, I mean, I've been working for 30 years. We have written some really amazing papers and बहुत हमने और भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, 4-5 एक्सपेरिमेंट और किए हैं। मैं अभी KP में बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट 2 लाख बच्चे 7,000 टीचर्स इस तरह करके हैं। लेकिन what happened there at that time, I'm talking like 2005, उसके एक साल बाद I was traveling to फैसलाबाद and so मेरी रिसर्च टीम का एक लड़का था, उसने कहा कि तार भाई ये जो है ये रिपोर्ट का गाँव में से हम गुजर रहे हैं। मैं चलो देखते हैं भाई, आफ्टर 12 years ज़्यादा 15 साल कम से कम। वाओ। तो जब मैं उधर गया तो लिटरली एक रैंडम स्कूल है गांव में, मैं कहा चलो जाके किसी स्कूल में देखें, तो मैंने कहा कि यार ये जो है ये आपको याद है, वो एक बाबा साहब बैठा हुआ था वो प्रिंसिपल जैसा उसको मैंने कहा कि आपको याद है कि यार इधर कोई 8-10 साल 15 साल पहले एक टीम आई थी, वो हमने रिपोर्ट कार्ड बनाए थे लोगों को दिए थे। उसने कहा जी हाँ मुझे तो बड़ी अच्छी तरह याद है। Really? And I said really? And he said, मैंने कहा किस why do you remember it? तो उसका एग्जैक्ट वर्ड है कि जी उस रिपोर्ट कार्ड की वजह से पूरे गांव में थरथली मची। Okay, थरथली, that's the right word, right? That's a dynamic ना, थरथली जिसको कहते हैं। And he said कि वो हुआ ये कि पेरेंट्स वगैरह का जो था वो तो ठीक था, पेरेंट्स का एक प्रेशर बढ़ा, which is the classic information का है ना, कि you tell people accountability, right ना, कि आप पेरेंट्स को बताते हैं कि जी ये हो रहा है इस तरह हो रहा है और वो प्रेशर बढ़ता है। That's only one part of it. Most people think of information as really reducing the friction between the parent and the school, ठीक है, वो तो ठीक है, वो भी हो रहा था, लेकिन really जो what makes this experiment unique is this idea कि we were giving information on all the other schools. Most people were thinking कि parent करेगा और school कोई बेहतर करेगा. So they were thinking as a dyad between the parent and the teacher or the parent and school. वो उस तरह देख रहे थे. What most people did not think, and we had thought about it, and that's why I think this worked, is actually there is another relationship which is between all the schools. 6-7 school है ना उस गांव में, तो उससे जो है वो really, what it did is just the competition between schools just exploded. And this was both private and both government. private and public. और वो एक जिसको कहते हैं ना एक लहर आ गई और वो everybody got engulfed in it. I started getting email messages. एक ने मुझे भेजी एक अखबार की कटिंग, वो लोकल भी होते हैं ना अखबार छोटे छोटे, वो I don't know कहाँ का अखबार था, certainly not Dawn or News or anything, कोई छोटा कोई देसी सा अखबार था, वो कटिंग बना के भेजी। अच्छा हमारी जो फंडिंग थी वो वर्ल्ड बैंक से थी कुछ ना, तो जिस तरह होता है कि हमने हमारे जो टेस्ट है उस पर लिखा हुआ था कि जी दिस इज फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक, हालांकि वो लीप्स लिखा होता है जैसे बिफोर सर्व। तो एक आदमी ने इश्तिहार लगा दिया, उसने मुझे दिखाया कि जी ये खबर आई है। वो खबर में क्या लिखा हुआ था, उसमें खबर में लिखा हुआ था जी वर्ल्ड बैंक ने हमारे स्कूल को नंबर 1 करार दिया। राइट। और जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना, वो बड़े, आप पाकिस्तान में जाए जिस तरह वो बनाते हैं वो स्कूलों में तो काफ़ी होता है, लेकिन और में भी वो गांव में स्कूल के साथ वो बैनर लगा देते हैं ना वो कपड़े का, ठीक है। तो वो जो है वो जो स्कूल ऊपर आए,
ठीक है, हाँ, उन्होंने फौरन अपने बैनर लगा दिए कि जी हम तो हमें, क्योंकि दिस रिपोर्ट वाज पब्लिक, राइट, तो उन्होंने वो बैनर लगा दिया कि जी हमारा स्कूल ये है वो है, मतलब लगता था कि आई एम नॉट किडिंग, एक्चुअली यू नो देयर इज नॉट वन बिट ऑफ एग्जैजरेशन इन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट रिपोर्ट कार्ड हैपेंड इन 2004-5. You know, those kinds of things still motivate us. ये हाँ हो सकता है और अच्छा हो सकता है. But coming to the statistical results, what we saw, three things. Number one, okay, on the average, the report card villages, relative to the control, as they move forward, performed much better. And remember, this is ये नहीं है कि ये एक स्कूल में हुआ है, ये पूरे गांव का हम बात कर रहे हैं ना. तो रिपोर्ट कार्ड की खास बात ये है कि वी मूव्ड द एजुकेशनल लेवल्स इन द एंटायर विलेज. ये नहीं है कि एक स्कूल में जाके टीसीएफ का एक स्कूल पकड़ा, उसको देख लिया, ये कर लिया. आपने पूरे सो कॉल्ड हमारा जो लोकल इकोसिस्टम है उसको पूरे का पूरे को हमने मूव किया. सो दिस इज नॉट समथिंग ट्रिवियल. नंबर वन. नंबर टू, बड़ी ज़बरदस्त बात इसकी, ये थोड़ी इकोनॉमिक्स की बात है, बट यू नो इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न. वो ये है कि प्रेडिक्टेबली द मोस्ट इम्प्रूवमेंट केम in villages, in schools that were declared in the report card below the median. उनको लगा कि यार हमारी तो रेपुटेशन और स्टेक है, हमारे कुछ हो जाएगा. और बाय द वे जो सबसे खराब स्कूल थे in the whole thing, some schools shut down because they realized कि अब तो यहाँ कोई आएगा ही नहीं. But most of them shut down. We were worried कि ये ना हो गए और स्कूल ही बंद हो जाए. But no, some the really bad ones. But most of the schools that were below the median, they were the ones who showed the biggest improvement. So they worked really hard. They worked really hard. That's how it's supposed to work, right? The whole idea is to bring the bottom up. But the Pakistan में यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब जहाँ पे आप लोग पढ़े हैं, सब लोग हैं, वहाँ पे क्या है, the top is getting better. I think Pakistani best schools, best students are the best in the world, right? I mean, they go everywhere and they perform really well. So the top is getting better here. Top is much better here than when I was a student, you know, 50 years ago. But what about the bottom? And I think this is interesting because this shows that they also want to improve. Of course. And we've seen you have to create the वो कल अली जिमा कह रहा था ना, amplification. You have to create the enabling environment. वो environment create करें तो खुद ही हो जाता है. Third, एक और इसका जो it's almost like the reason why I'm spending so much time talking about this is because then the third thing happened. The schools at the top there, गाँव में ना, they started feeling pressure from the bottom. वो नीचे वाले improve कर रहे हैं, तो उनका क्या reaction होता है? अच्छा ये है कि अगर आप already किसी level पे perform कर रहे हैं, तो आपको further quality improve करना is pretty costly. क्योंकि वो जो छोटी मोटी inefficiencies होती है ना, जो नीचे वाले थे, वो तो ठीक कर सकते हैं. इन पे जब competitive pressure नीचे से बढ़ा, this is a remarkable result. You know, people जो जिन्होंने पेपर पढ़ा है वो सब इस पे रिमार्क करते हैं. वो ये है कि उनकी जो प्राइसेस हैं relatively to the control, उनकी प्राइस ग्रोथ कम होनी शुरू हो गई. So you know, so what did the report card do? It increased quality. It increased quality most at the bottom, and then it reduced prices in the village. So वो जो भी था वो एक जो monopoly type of था कि एक स्कूल की. अब आप पूछे ना कि यहाँ पे सब लोग रो रहे होते हैं कि जी बीकन हाउस की फीसें इतनी बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया. There are ways you can do both. The report card is the final thing that happened, which we weren't expecting, which is कि the government schools also improved. अब गवर्नमेंट स्कूल में आप कहते हैं यार ये ब्यूरोक्रेट है, इनके तो कोई इंसेंटिव ही नहीं है, ये नहीं है. लेकिन जब वो गांव के अंदर एक लिटरली एक सोशल मोमेंट आया जिसमें सब लोग वर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, the government schools also had to respond. And it's such a win for the people कि उनको the education quality got better और जो कॉस्ट थी वो आप कह रहे हैं कि वो भी कंट्रोल हो गई और नीचे आ गई. It is. आपने यहाँ पे अर्ली लर्निंग पे फोकस किया इन विलेजेस में, और जब आपने आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आप 15 साल बाद आपने उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखा. Exactly. ये जो होता है ये इसको कहते हैं fade out. In our literature the term used is fade out. मतलब ये है कि अमूमन ये होता है, ठीक है जी हो गया, 2 साल 3 साल काफ़ी एक्शन रहा था, तालीम आज की ये हुआ,
फिर उसके बाद हम कहते हैं कि थिंग्स कम बैक टू नॉर्मल। ये बहुत सारी इंटरवेंशंस में होता है। हमने ये कहा कि देखो यार, ये जो है ना, वी विल एक्चुअली ट्रैक दीज किड्स। हम देखते हैं कि इनका लॉन्ग टर्म में क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फ़र्क आगे भी जाके पड़ता है या नहीं, वरना तो ये ठीक है जी, चौथी जमात का रिजल्ट बेहतर हो गया, पांचवीं का, छठी का बेहतर हो गया, बट दैट्स नॉट इनफ। यू नो, इन द एंड ये एजुकेशन में अब मामा से पूछें कि भाई वो बच्चों को क्यों तालीम देते हैं, क्यों उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं गरीब मामा की बात कर रहा हूँ, हमारा जो सैंपल है उसकी बात कर रहा हूँ, जो हमारे गाँव में, देहात में, पिंडों में है। All of them say, you know, one of the most, in one of my interviews, conversations, this woman was a maid, ना सफाई करती थी, माई थी, मुलाजमा जिसको कहते हैं, लेकिन जो कि गाँव में थी, उसका क्या हाल होगा, यानी कि शहर में थी। You know, basically all of them say कि ये हम क्यों तालीम दे रहे हैं कि यार हमारे बच्चों की जो है वो थोड़ी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। All of them want a better life for their kids. You go to California, जहाँ मैं हूँ, मतलब एक क्लास से दूसरी एक एडवांस तरीन स्टेट, आप उनके माँ बाप से पूछें जो मेरे बच्चों के पीयर्स थे, वो कह जाते हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि जी उनके बच्चों की ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो। तो व्हाट्स अमेरिकन ड्रीम? अमेरिकन ड्रीम इज़ के नेक्स्ट जनरेशन जो वो पिछली जनरेशन से बेहतर करे। दैट्स द पाकिस्तान ड्रीम। एक्चुअली इट्स बिगर देन द अमेरिकन ड्रीम। यहाँ पे जो, मतलब आई टेल यू, यहाँ पे जो पेरेंट्स का रिजॉल्व है, तो वो अपनी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि भाई क्या जो अगर आपकी लर्निंग इम्प्रूव होती है, वो गरीब बच्चे की फाउंडेशनल लर्निंग जो है, फाउंडेशनल लर्निंग इज अ टर्म। फाउंडेशनल लर्निंग, यू नो, वी वर काइंड ऑफ अहेड ऑफ द गेम। मतलब जब हमने काम शुरू किया तो उसमें ये टर्म नहीं थी फाउंडेशनल लर्निंग। मतलब हम ऑलरेडी वर वर्किंग ऑन व्हाट लेटर स्टार्टेड बीइंग कॉल्ड फाउंडेशनल लर्निंग। सो इट इज फाउंडेशनल लर्निंग। फाउंडेशनल लर्निंग का फलसफा ये है कि यार एक बच्चा, उसको अगर आप बेसिक उसकी ठीक कर दें, मतलब उसको बेसिक हिसाब किताब, मैथ में ना हिसाब किताब आ जाए, उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बहुत आ जाए, अगर उसको कोई प्रॉब्लम दें, लाइक अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यू नो, बिजली का बिल पढ़ सके, ग्रोसरी शॉपिंग में जाए, अगर घर में है तो घर का हिसाब, इस तरह की चीज़ें, दैट्स फाउंडेशनल लर्निंग। और बेसिक और एंड एबिलिटी टू रीड, राइट? एबिलिटी टू रीड इज रियली इम्पोर्टेंट। राइटिंग फिर बाद में आती है, राइटिंग भी है फाउंडेशनल लर्निंग, राइटिंग मुश्किल होती है ज़रा। So those skills, Leaps test is very good for that. उसमें advanced नहीं है थोड़े से concepts, so we do go up, but we are very focused. We have a very rich set of questions on foundational learning. तो फिर हमने इनको ट्रैक करना शुरू किया, ठीक है? So जब हमने जो फर्स्ट राउंड था वो था 2004, 5, 6, 7, और ये वही बच्चे हैं। हमारा 2 सैंपल थे इसमें well, I don't know कितनी डिटेल में जाना चाहिए, but there is a distinction. जब हम ये स्कूलों को कर रहे थे, उसके साथ साथ उस वक्त सोचें, मतलब यू नो, वी आर थिंकिंग, हमने एक इस गांव का रिप्रेजेंटेटिव हाउस होल्ड सैंपल उठाया। जो हमारे ये जो बच्चे टेस्ट हुए थे वो हाउस होल्ड में भी थे, तो हमने उन हाउस होल्ड को ट्रैक करना शुरू किया। तो वो एग्जैक्टली वही बच्चे थे जो इसमें थे, ठीक है? स्कूल तो ये है ना कि आप, हम 2007 तक तो थे यही बच्चे थे जिनको हम ट्रैक कर रहे थे। फिर उसके बाद 4 साल के बाद, 4 साल में हम हर साल गए ये किया। That's the results report कार्ड के जो है उस पीरियड के। उसके बाद we took a break and then we went back to the same villages in 2011. अब ये बच्चे तो स्कूल से निकल चुके थे ना, ये अब चौथी 5वीं में थे, सोचे 4 साल बाद अगर 5वीं 6वीं में था, 9वीं 10वीं में थे, लेकिन हाउस होल्ड सैंपल भी था ना हमारा जी। तो उन हाउस होल्ड सैंपल में जितने भी बच्चे हमारे जो रिपोर्ट करने में जिनकी टेस्टिंग की थी वो 5-6 हज़ार बच्चे थे। इसमें कुछ 30-35 हज़ार बच्चे थे जो पूरे गाँव सैंपल में। उनको फिर जाके हमने दोबारा टेस्ट किया 2011 में, और हम उन स्कूलों में भी गए, हमने स्कूलों में भी टेस्टिंग की। वो बच्चे फ़र्क थे, कई स्कूल भी बंद हो गए थे, नए खुल गए थे, टीचर बदल गए थे, यू नो, बट द थिंग इज, एंड गेस व्हाट वी फाइंड, द रिपोर्ट कार्ड इफेक्ट परसिस्ट्स। वाओ, आफ्टर ऑल दीज इयर्स। उस वक्त आ गया आफ्टर 4 years, एंड दैट वाज अ वेरी मेजर रिजल्ट के। और उसमें हमारा ये ख्याल है कि अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिस इज इस पे हम काम कर रहे हैं, ये है डेरा में कि भाई टीचर भी बदल गया है। अब उन स्कूलों में वो कई प्राइवेट स्कूल में काफ़ी टर्नओवर होता है कि वो टीचर भी नहीं थे, बच्चे भी बदल गए हैं। अभी तक स्कूलों में भी इफेक्ट आ रहा है, हाउस होल्ड में भी इफेक्ट आ रहा है। स्कूलों में क्यों आ रहा है? एंड आई थिंक व्हाट पीपल हैव डन इज ट्राई टू फिगर आउट कि यार
उनकी अपनी जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल है वो उसको उस क्या चीज़ है जो लर्निंग बढ़ा रही है. फॉर इंस्टेंस जो स्कूलों के सामने, अगर मैं पेरेंट्स की चॉइस की बात करें, स्कूलों के सामने क्या चॉइस है? स्कूलों के सामने चॉइस बड़ी सिंपल है. एक जो और भी हैं लेकिन ये जो है, एक ये है कि वो किस क्वालिटी का टीचर रखें. उनके पास ये चॉइस है कि अगर लड़की को ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की रखें, BA पास, तो उसको तनख्वाह ज़्यादा नहीं होती है. ठीक है, तो उनके पास ये क्वालिटी रेट होगा. वो 2 टीचर रख सकते हैं, 3 टीचर रख सकते हैं 10वीं पास 12वीं स्कूल में, गांव में है जी, किसको पता है, छोटे मोटे इसी तरह है ना. या फिर वो कम टीचर रखें और ज़्यादा पढ़ाई लिखे करें, वो करें. इट लुक्स लाइक देयर गोइंग इन दैट डायरेक्शन. सो देयर इज समथिंग चेंजिंग इन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ द टीचर का जो अब मार्केट है उसमें भी फ़र्क आ रहा है. तो दे आर वेरी प्रोफाउंड चेंज जो हम देख रहे हैं. हाउस होल्ड में हमें फ़र्क नज़र आ रहा है. तो 2011 में हमें फ़र्क नज़र आना शुरू हुआ. लेकिन उसके बाद वी वर इवन मोर एम्बिशियस. हमने कहा कि अभी तक वो बच्चे इस लेवल पे नहीं पहुंचे कि अभी तक वो सारे स्कूल में ही थे, कुछ ड्रॉप आउट हो गए थे जिस तरह होता है पाकिस्तान में. लेकिन व्हाट वी वांटेड टू रियली डू इज जो अभी हम जो कर रहे हैं काम, जिसको हम कहते हैं फ्रॉम लर्निंग टू अर्निंग. हम चाहते थे कि हम आके देखें कि भाई एक्चुअल जब ये बच्चे अपनी जिंदगियां शुरू करते हैं, राइट, व्हेन दे एंटर एडल्टहुड. देखिए माँ बाप क्या चाहते हैं, मतलब आप माँ से पूछें आप अपने बच्चों के बारे में क्या चाहते हैं. मैं आई एम अ पेरेंट. बेसिकली व्हाट यू वांट इज टू लॉन्च योर किड्स सक्सेसफुली इनटू एडल्टहुड. यही चाहते हैं ना आप जी. पाकिस्तान में क्या कहते हैं, पाकिस्तान में बड़ी प्यारी टर्म है, मेरी वहाँ कहती है ये कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे सेटल हो जाए. You know what that means, right? That's a code word. शादी हो जाए. Right? That's what parents want. Right? True. So we wanted to actually observe that transition. ये बहुत important है. तो वो सेटल हुए कि नहीं फिर? Well, settle, मेरा तो ख्याल है कि मैं तो नहीं, I don't care मेरे बच्चे settle होते हैं नहीं होते हैं. नहीं, settlement is you know what you want. मेरे आपके लीव्स के बच्चे थे जिनको आपने नहीं फॉलो जरूरी नहीं किया. है. लेकिन अब मैं आपको जी. बता दूं ना, ये कहानी है. और मेरी जिंदगी जो है अगर मैं पर्सनली देखूं तो आई हैव ऑल्सो, मतलब जब ये लीव शुरू हुआ तो मेरे बच्चे इसी उम्र के थे. एक कुछ उससे कम था. मेरा बेटा जो था वो स्कूल नहीं गया हुआ था उस वक्त, छोटा था, 2-3 साल का था. एक बेटी जो थी वो वॉकी प्राइमरी स्कूल में थी और एक मेरे ख्याल मिडिल स्कूल में थी. तो मतलब माय किड्स वर स्पैनिंग दैट एज. और वो जिस तरह से मेरे बच्चे भी बड़े होते गए हैं, मेरा भी बच्चों के साथ इंटरेस्ट बढ़ता चेंज होता है ना. बच्चे बड़े होते हैं, योर रिलेशनशिप विद योर किड्स चेंजेस एंड व्हाट यू वांट टू हाउ यू डील विद देम चेंजेस. ये बच्चे भी उसी तरह बड़े हो रहे हैं. तो मेरे नज़दीक ये ट्रांजिशन स्टडी करना वाज वेरी रिवॉर्डिंग टू रियली सी हाउ दीज किड्स आर ग्रोइंग, चेंजिंग एंड ऑल दैट. हमने फिर डिसाइड किया कि 2018 में, ठीक है, कि वी विल गो बैक टू द हाउस होल्ड सैंपल. अब सोचो, मतलब ये है कि जो एक उस वक्त 10 साल की बच्ची थी 2004 में, 2018 में वो 24 साल की है. जो 12 साल की थी वो 26 साल की हो गई. हमने जिन बच्चों को टेस्ट नहीं भी किया था वो सारे हाउस होल्ड के बच्चों को ट्रैक किया. वो कोई 7-5-6 हज़ार बच्चे थे भाई, और हाउस होल्ड्स थे. अब आप देखें पाकिस्तान में माइग्रेशन होती है. लड़के हैं 20s में, अभी दे आर इन द 20s, मोस्ट ऑफ देम. कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं थोड़े से, लेकिन द बल्क ऑफ देम आर इन द 20s, मोस्टली 20 to 25, 24 to 27 भी है. मतलब हमने, अब द पॉइंट इज इट्स सो डिफिकल्ट टू ट्रैक देम. माइग्रेशन हो गई है जी. वो लड़का था पहले रेमियार खान में था, अब वो कराची में काम कर रहा है. रिलोकेट कर गए हैं. कई हाउस होल्ड रिलोकेट किए हैं, लेकिन बॉयज पर्टिकुलरली एज दे बिकम यंग मैन, there's a lot of migration. They move out for work. They move out for work. Temporary migration. हमारे सैंपल में कुछ 100-150 बचा है जो दुबई, सऊदी अरेबिया में है. ठीक है. फिर यह है कि कुछ जो है वो लाहौर आ गए, कुछ कराची, फिर कुछ अपने ही शहरों में. कोई अगर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है. I don't know people realize that how big the place is. Huh? It's like bigger than New York and all that. Right? It's a huge district. तो वो फिर कहीं तहसील हेडक्वार्टर में चले जाते हैं अपने गांव से, या फैसलाबाद शहर में चले जाते हैं, सिटी में, इस तरह करके. लड़कियों की शादी हो गई है. ठीक है. अब आप सोचें, हमने उनको इंटरव्यू करना है, पहले तो उनको ढूंढना. ठीक है.
फिर आप ये सोचे कि आप उनके ससुराल में जाके उनको इंटरव्यू कर रहे हैं, जी आपकी बहू है जी, वो कहते हैं who the hell are you? वो कौन है भाई, तू कहाँ आके मेरी बहू नाल गल करने? हमें कहा जी वो छोटी थी तो हमने उसको किया था, उसकी टेस्टिंग की थी 10 साल पहले, चाहे वो उसको 8 साल की थी. Anyway, it was a lot of work. I can imagine. And tracking, इसको कहते हैं tracking. उसमें एक थोड़े ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं कि यार, you know, how many people do you need to track so that you can still, you don't want, you know, what is called too much attrition bias. Attrition होती है ना sample में. Anyway, good news. We managed to track 84% or 85% of them. 85% of the बच्चे जिसको हमने उस वक्त टेस्ट किया था 2004 में, we were able to find them. Wow, despite like migration and everything. Despite migration, सब कुछ, शादियाँ, everything. And then we started looking at, you know, then we were able to actually look at some life outcomes. ठीक है, कि वो उस वक्त जो रिपोर्ट कार्ड में ठीक है ये स्टैंडर्ड, वो इतनी परफॉर्मेंस बढ़ गई, वो हो गया, उनके टेस्ट स्कोर्स बढ़ गए, इस तरह की चीजें. But really, that doesn't, you know, that's not enough. Now, ठीक है, हो गया. The point is, you know, did it impact their lives? Did it? It did. किस चीज़ों में? मसलन दो चीज़ें मैं आपको बता दूं. So first of all, educational attainment. Okay. ये कुछ नंबर तो मुझे ज़बानी याद हैं. मतलब ये हमारा जो सैंपल है, जो कंट्रोल भी है ना, हम कंट्रोल को भी ट्रैक कर रहे हैं भाई. So ये मतलब ये है कि we are always tracking the control. So it's always relative to business as usual. मतलब वैसे भी दुनिया चेंज हो रही है ना. मतलब हर किस्म की चीजें हैं, ये वो तो कंट्रोल में भी हैं. The whole idea of having control is that all these extraneous changes should be, you know, because these villages were randomly selected at that point, those extraneous changes should affect them the same way. You know, that's the whole philosophy of the randomized control trial. तो कंट्रोल को भी हम ट्रैक कर रहे हैं. वो कंट्रोल वालों को सोचो, कंट्रोल वालों का नाम ने रिपोर्ट कार्ड दिए हैं ना, पूछ के वो कहते हैं जी तुम फिर आ गए हो. सब ये है कि so it's the art of persuasion. You know, I have to use all my charm to convince these people to let us into their. देखो ये बड़ी this is a segue, but this is very important. I think there is a very sense of responsibility here. कि ये लोग जो हैं, हम हाउस होल्ड सर्विस करते हैं, बहुत डिटेल पे पूरा दिन हमारा बंदा उनके घर में बैठा होता भाई. These people are really opening their lives to us. ठीक है? And they are really telling us about very deep things. मतलब एक दफ़ा आप लोगों को मैंने ये देखा है कि अगर आप, there's an art to interviewing people, and that art is कि what you have to do is to get people to really start thinking about their own context of their own lives. तो आप उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछ रहे हैं, और एक दफ़ा वो उनको अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो बात शुरू करते हैं, then they open up. And they tell you all kinds of things. हमसे बड़े पर्सनल सवाल पूछ रहे होते हैं कि आपका बच्चे के बारे में क्या ख्याल है, ये क्या ख्याल है, कितना पैसा खर्च करते हैं, ये क्या करते हैं. फिर वो हम पूरी एक वो करते हैं, मैंने शुरू में की है, मतलब you know many of these people are just around the poverty line. तो हम उनकी न्यूट्रिशन का पूछते हैं काफ़ी, मतलब it's very invasive. ठीक है. And these people are, and it's willing, right? It's IRB, informed consent. मतलब ये है कि जिस टाइम वो इंटरव्यू बंद करना चाहे वो बंद कर सकते हैं, जबरदस्ती तो कोई नहीं है ना. The point is they're opening them to us. तो वो हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है उनका जो दे रहा है. वो हमने डेटा की एनोनिमिटी प्रिजर्व करनी होती है उनकी. हमने you know, they will sometimes people do stupid, you know, they will say stupid things, silly things. लोग अजीब किस्म के बिहेवियर होते हैं उनके, हर किस्म की चीज़ें नजर आती है. But you have to treat them with respect. और वो जो डेटा है, हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमारी क्या जिम्मेदारी है. हमारी जिम्मेदारी ये है कि उनकी जो डेटा की कहानी हमें बता रहे हैं, राइट, these are real people. These data sets आप देखते हैं स्प्रेडशीट्स में नजर आ रहे होते हैं, रिग्रेशन लाइन में नजर आ रहे होते हैं, इकोनोमेट्रिक्स आ रहे होते हैं, स्टैटिस्टिक्स आ रहे होते हैं, लेकिन you always have to remember कि these are real people. ये असली ह्यूमन बीइंग्स हैं भाई, इनकी भी अपनी फैमिली है, इनके अपने मसले हैं, ये हैं वो है. सो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जितनी ऑनेस्टली, रिगरसली, in an unbiased way, we bring these stories up. And हमारा फ़ायदा ये है कि we have this entire universe of stories, and the statistics allows us to manipulate in the data in ways where we can create some interesting narrative about them.
तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी स्टोरीज को बाहर लेके आएं और दुनिया के सामने रखें और वो इस तरह रखें कि everybody else learns from their stories. There is so much to learn from them. हमारे papers have been published in American Economic Review, Quarterly Journal of Economics. Why? Every single paper that we have written is on the lives of these people. And we believe that the lives of these people, the constraints that they face, the decision-making problems that they are trying to solve, that has lessons for economists around the world on how to think about society. So I mean, it's very gratifying, but you have to treat them with respect. So what is the data telling us basically? जब आप गए वहाँ पे इतने साल बाद, The data is telling us a few things. मतलब ये control group है, उसमें 10 to 12% of the kids have gone on beyond high school to college. ठीक है, हमारे जो original sample था. Report card में क्या है? Report card में it's about 4 to 5 percentage points more. अगर बाहर दुनिया में 12 point है तो ये 17 point है. It's about a third more. So many of these kids are staying on in school. 12वीं में, 10वीं में. So educational attainment has grown. So this is maybe the only time I'll talk about out of school children is because, you know, a big chunk of out of school, by the way, हमने उस पर कोई काम नहीं किया सही तरह. बोलते बहुत हैं. There's a lot of education emergency alarm ये वो. मतलब उसको पहले unpack तो करें ना उसको. A big chunk of out of school kids, some are जो कभी भी स्कूल नहीं गए, ठीक है? वो तो हो गया कि kids who have never started school, वो भी एक नंबर है. Some kids are छोटे kids, वो भी स्कूल नहीं गए लेकिन वो आगे जाके चले जाते हैं. पाकिस्तान में delayed enrollment है. बहुत इंटरेस्टिंग है ये. अगर आप एक टिपिकल क्लासरूम देखें तीसरी जमात का पाकिस्तान में, अमेरिका में क्योंकि कंपल्सरी एजुकेशन है तो एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जो एज डिफरेंस है वो 11 महीने का हो सकता है. ठीक है, मतलब वो साइकिल होता है ना कि आपको इस क्लास में किंडरगार्टन में डालना है इस एज में. कैलिफोर्निया में कंपल्सरी एजुकेशन है फर्स्ट ग्रेड से. हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी थर्ड ग्रेड में जाएँ 12 साल का बच्चा भी बैठा होगा, 8 साल का बच्चा भी बैठा होगा, 13 क्योंकि डिलेड एनरोलमेंट है. वो कुछ बच्चे पहले आउट ऑफ स्कूल थे वो बाद में आ गए हैं. बट द बिग चंक ऑफ आउट ऑफ स्कूल विच you know I am interested in is kids who drop out. That's a big chunk. ना people who started school but then they drop. ना. So you're saying कि data हमें बता रहा है कि अगर early education बेहतर है, strong है, तो there are more chances that kids won't drop out. Hey, you said it better than I would. That's really the point. The big point is if you increase foundational learning, you make it better, delta. If you make it better, it has two effects. One is कि आपकी directly skills improve होती हैं, ठीक है? मतलब you are more capable now. You can do better. You can do better in math. You can write better. You can read more complex documents. So ये सारी चीजें बेहतर होती हैं. That's a direct effect on your skills and capability. But the second effect is you stay in school longer. तो वो और बढ़ती है ना. एक चौथी जमात में आपने चीजें सीखी जो इम्प्रूव हुई वो तो हो गई, लेकिन फिर यू स्टे इन स्कूल लॉन्गर. आप इन दोनों को कंबाइन करें, देन यू सी व्हाट हैपेंस इन द लेबर मार्केट. अब नौकरियां कर रहे हैं ना काफी सारे बच्चे, स्पेशली बॉयज. आई कम टू द गर्ल्स में आप वुमेन कहना चाहिए ना, मतलब तो ये यंग वुमेन है. तो व्हाट यू सी is an increase in their wage rates. Wow. Yeah. So what you see is about a 12 to 13 percentage point increase in their wage rates. That's huge. That's very big. और उसका जो well, you can say it's big or it's not big, but I'll tell you what it is big relative to. मतलब हम जब करते हैं ये गीब में, when we talk about cost effectiveness, मतलब आप rate of return देखना चाहते हैं ना, मतलब आप बहुत ज़्यादा खर्चा करें. अगर हम इन स्कूलों पे लाखों डॉलर खर्च करते हैं, आई एम श्योर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता. बट व्हाट यू हैव टू सी इज द रेट ऑफ रिटर्न. यू नो हाउ मच वाज द कॉस्ट ऑफ द रिपोर्ट कार्ड. ये मैंने पूरा कैलकुलेट किया है, सब मिला के, सब ये वो पैसे, सर्वे ये डिज़ाइन वगैरह 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 वगैरह, $3 per child. It's a very cheap intervention. It's a very cheap intervention. इसके लिए ना आपको कोई बिल्डिंग बनानी पड़ती है, ना ये करना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है, ना लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, कुछ भी नहीं. सोचो, all we are doing is mobilizing your own inner resources, चाहे वो पेरेंट्स हैं या स्कूल है. So, you know, through a very simple, cheap mechanism, all you have to do is to treat these people with respect and test them carefully
honesty, rigorously. Testing बहुत important है ना, हमारी testing थी भाई. So उसकी it's credibility है. basically one of the cheapest It investments is one of that the you can cheapest make in investments with a education very in high rate of Pakistan. return. हमने ये पूरी opportunity cost निकाली है कि इनमें से बच्चे ज़्यादा. अच्छा, इसमें एक बहुत interesting है. So one of the big costs, benefit जो है, benefit तो है, लेकिन when they stay in school longer, there is a cost. उनको school fees देनी पड़ती है. फिर जो है वो दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लॉस्ट वेजेस ना, मतलब मेरे बच्चे, मतलब बेटी पीएचडी कर रही है, मतलब ये है कि मतलब शी इज गिविंग अप अ लॉट ऑफ वेजेस, राइट? सो वी कैलकुलेट दैट आल्सो, एवरीथिंग. सो फुल टोटल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्टेइंग इन स्कूल, फीस, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ऑन गवर्नमेंट स्कूल जो एक्स्ट्रा हुए हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा वगैरह वगैरह, सब भी कर लें, सब मिला लें, ठीक है? द कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो is something like 6 to 1. Wow. 6 to 1. ठीक है? और अगर आप accounting पढ़ते हैं तो there is a term called an internal rate of return. That's what they typically do ना. जब stock market में जाते हैं तो जब लोग invest करते हैं तो वो देखते हैं कि ये कंपनी कितना कर रही है. तो अगर आप इसका internal rate of return निकालें तो that's something like 20-21% per year. 20-21%. It's a big number. It's a big number. That's like Apple stock. अगर जिन लोगों को पता है कि आप सब लोग बैठे हैं, मैं भी बेवकूफ़ हूँ. जब रिपोर्ट कार्ड शुरू किया था, अगर उस वक्त मैं एप्पल स्टॉक खरीद लेता तो आज मैं आपके सामने ना बैठा होता. What you're saying is कि individually तो फर्क पड़ रहा है उनकी ज़िंदगी में, but there's a macro picture as well, right? When you talk to our board member Atif, right? I mean, he's very insistent that Pakistan ka main question is productivity, right? Agreed. But how do you improve productivity? This is one of the best examples of productivity going up. मतलब ये है कि cost, productivity होती है, cost इतनी अगर बढ़ी भी गई है तो जो benefit है वो cost के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है. Right? Productivity means you're getting something out of nothing. Right? I mean, that's what Bob Lucas said. So the question is, I think this is an example of a very big productivity increase. और productivity increase जो है ये education, अगर हम एक cheap level से education outcomes बेहतर कर रहे हैं तो productivity increase ये है जिसकी वजह से इनको तनख्वाहें मिल रही है ना. इनके तो माँ बाप कुछ भी नहीं है ना. ये तो नहीं है कि इनके बाप का कोई भाई है तो वो जज है तो उसको पैसे मिल गए तो ये हो गया था, फौजी है, whatever, right? These people are not people who are entering the labor market with a lot of connections and all that. So that's the big thing. The second thing that I want to talk about, which is it's not all rosy, right? We need to talk about those things too. So the big question is, which I want to segue into. So anyway, yeah. Before I go, I want to segue into a different part. The big thing is, one of the big issues is that education में you make the investment today in foundational learning. उसका जो return आता है वो at least 12-14 साल के बाद आएगा ना. मतलब आप स्कूल से निकलेंगे, कॉलेज जाएंगे, फिर जाके आप शुरू करेंगे ना. So the big question is, how do you really create incentives for parents का? Parents की investment भी बढ़ती है. वो बच्चों में ज़्यादा time लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, tuition कराते हैं, ये करते हैं. With something there is a return in the future. If we are doing these calculations, Asim and Jishnu are really talking to a bunch of people on, so-called impact investors. मतलब this is a rate of return. If you, मतलब हमारा ये ख्याल है कि आप इसमें तकरीबन $1 billion साल का लगा सकते हैं और 20 साल के बाद just through the taxes that these kids will pay through the increased wages, ये delta wages है, इसमें से जो tax कटेगा, और अभी income tax नहीं, सिर्फ sales tax. अच्छा. ठीक है, वो जो कटेगा उससे वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट रिकूप हो जाएगी. राइट? सो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट दैट पेज ऑफ एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ गारंटीड पे ऑफ, क्योंकि इनकी लेबर मार्केट में जा रहे हैं, नौकरियां बढ़ रही हैं. ये दिस इज पाकिस्तान नंबर 1 प्रॉब्लम. एंड हाई रिटर्न्स हैं उसके. और उसके हाई रिटर्न्स हैं. सो यू आर मेकिंग दीज पीपल्स लाइव्स बेटर, यू आर गेटिंग योर इनकम्स अप एंड यू आर डूइंग इट एट वेरी लो कॉस्ट. सो माय क्वेश्चन इज कि दैट्स वेयर वी आर. We really have to think about education financing in this country. Uska jo hai wo, it's a cliche term, but what is it called? Paradigm shift. Don't want to use that term, but this is a paradigm shift. You got to think very differently about education. जो हमारी जो game है,
ये मुझे लगता है ये उसी तरह थी जब ये पूरी आईटी रेवोल्यूशन शुरू हुई थी। ओरेकल जो थी कंपनी, उस वक्त जो बजट था ना कंपनीज में आईटी का, वो सिर्फ वो एक उनका हेड ऑफ आईटी होता था, उसका एक बजट होता था, वो इन्वेस्टमेंट उसी में कर सकता था, ठीक है, वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट होती थी। तो ये ओरेकल का जो है मेरे ख्याल लैरी एलिसन, ये इसने कहा कि नहीं, दैट्स द रॉन्ग वे टू थिंक अबाउट इट। उसने कहा कि आपको ज़्यादा खर्चा करना है इसमें, लेकिन लोग कहते थे जी हमारा तो इतना सा बजट है। उसने ही वॉज द वन हू डिड अ कैलकुलेशन लाइक दिस। उसने कहा कि जी अगर आप आईटी में इन्वेस्टमेंट ट्रिपल कर दें, 10 गुना कर दें, आप ये देखें ना आपकी कंपनी को कितना फायदा होगा, तो उस फायदे में से आप ये इन्वेस्टमेंट निकालें ना। दैट्स ऑल वी आर सेइंग, दिस जस्ट मेक्स परफेक्ट सेंस। इसमें जो, और मैं ये नहीं कह रहा कि लोग जो है वो बेहतर सिटीजन बन जाएंगे, मुल्क को क्या फायदा होगा, फॉरगेट इट। दिस इज अ प्योरली इकोनॉमिक कैलकुलेशन। ये इकोनॉमिक बेनिफिट है, ये इतना ज़्यादा होगा कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट 20-30 गुना भी बढ़ाएं फिर भी ये ठीक होगा। दैट्स द पैराडाइम शिफ्ट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट थिंकरिंग अराउंड द एजेस। आप इस सिस्टम का वाकई ही शक्ल बदल सकते हैं। उसके लिए पैसा चाहिए, करें उसका आगे पूरे तरीका है, उसको किस तरह खर्च करना है, किस पे जाना है, क्या करना है, आना कहाँ से है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पैसा, एक हम ये बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को साथ, जो इम्पैक्ट इन्वेस्टर होते हैं, कि अगर ये पैसा आए यहाँ पे तो आपको उसका एक रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। और वो आप बात भी करें जो हम वन ऑफ द चीपेस्ट इंटरवेंशंस की, These are, और ये रिपोर्ट कार्ड किया, और अभी पाकिस्तान में वेजेस कम है, मतलब पाकिस्तान का जो सिस्टम हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो अगर आप देखें कि अगर ये थोड़ी सी ये इकॉनमी जो है ये बेहतर होनी शुरू हो जाए तो वेजेस भी बढ़ेंगे। इन मतलब एक ओवरऑल इकॉनमी वाइड इफेक्ट भी होगा ना। तो जितने ज़्यादा ये इकॉनमी तरक्की करेगी उतना ज़्यादा ये रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा बढ़ेगा। सो एक दफ़ा शुरू तो करें ना। सो माई सेंस इज के दिस इज, सिंस यू लुक्ड एट डेटा और आपने गर्ल्स और बॉयज़ का भी देखा कि क्या डिफरेंस था, और इम्पैक्ट की अगर हम बात करें कि अर्ली एजुकेशन जो है उसने हाउ डिड इट इम्पैक्ट द गर्ल्स, व्हाट ट्रेंड्स कुड यू सी देयर, एंड यू नो टॉकिंग अबाउट सोशल चेंज, और वो जो हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं। यार ये जो है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई थिंक दिस मे बी फ्रॉम सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तानीज, लेकिन सोसाइटी क्या है, हम लोग ही हैं ना, हाउस होल्ड्स, माएँ बाप, families, घराने, खानदान। What is happening with girls and females in this country is really, it's both, I would say, it's quite remarkable, the change that has happened, remarkable. ठीक है? But it's also there's a big element of frustration in it. दोनों चीज़ें हैं। Let me say what I'm saying. All this data say, अभी मैंने लीप्स का, not the households, but the school, the villages, we went back again. मैंने अभी स्कूल में टेस्टिंग की है 2024 with SERP, 2 rounds, ठीक है? उसमें क्या नज़र आ रहा है? चौथी जमात की बच्चियाँ अब 2024 में, 5वीं जमात की बच्चियाँ 2024 में are outperforming boys by a considerable and very large margin. Outperforming. वो तकरीबन जो चौथी जमात की बच्ची है वो तकरीबन उस लेवल पे है जो 5वीं जमात का बच्चा है। पहले ये था कि ये रिजल्ट बाकी दुनिया में भी आ रहा है, वो ज़्यादा था लैंग्वेज आर्ट्स में, अंग्रेज़ी और उर्दू, वी टेस्ट इंग्लिश एंड उर्दू। मैथ में होता था, स्टेरियोटिपिकली कहते थे कि लड़कियाँ पीछे हैं, लेकिन लीप्स में अब वो मैथ में भी आगे निकल गई हैं। वो मैंने केपी में किया है। So this is not just Punjab. I've done 200,000 kids in KP. Do things that come out of leaps, and this is now coming out in the school survey 2024 too. But 2018 और 11 को अगर आप कंपेयर करें, ये बच्चियाँ जो थी ये लीव्स की, इनकी 75% माएँ जो थी वो अनपढ़ थी। Look at that number. When you look at them 15 years later, जो 23% इनकी बच्चियाँ हैं, 23% of their girls are now going beyond high school. In one generation, we have gone from a primarily women being completely illiterate, ठीक है, to 23% of them. This is 2018 of going beyond high school. ये जो change है in this landscape is so dramatic
मतलब आप बाकी मुल्कों में देखें, अमेरिका में देखें, इस तरह के क्लॉडिया गोल्डन, Nobel laureate economic historian, I mean, she's been writing on women in the US. These things take like 30-40 years in places, you know, US में late 19th century, early 20th century में इस तरह की changes आनी शुरू हुई थी. So this has happened right in front of us. So फिर आप, it is true, okay, so it is true that in the LEAP sample there are more girls than boys who don't go to school at all. So there is a node here too. कोई बच्चे हैं जो बिल्कुल जो गई नहीं है school. So their girls outnumber boys. But what is true? So what is the implication? Which is fascinating for this out of school children discussion. Once a girl gets into school, she is a lot more likely to persist. Okay? That's really So interesting. this whole idea, okay, the dropout is like a female phenomenon. So it is true that out of school children में there's a lot more girls जो कि कहीं कभी भी नहीं गई. But once you look at the girls who are in school, okay, एक दफ़ा लड़की जो है वो मिडिल स्कूल पहुंच जाए, ठीक है, फिर वो नहीं पीछे छोड़ती, वो ऊपर चलती रहती है. अच्छा, there's no dropout there. There's I mean, much less है dropout. Of course there's dropout. But compared to the boys. Compared to the boys. और अभी जो लीव्स का 2024 का डेटा है उसमें यह है कि पहली दफ़ा जो है वो जो हमारे मिडिल स्कूल ग्रेड्स हैं लीप्स में, उसमें लड़कियों और लड़कों की तादाद बराबर हो गई है. As many girls in middle school as boys. That has never happened in this history. कभी भी नहीं था ये. और आप देख सकते हैं अगर आप हायर एजुकेशन में चले जाएं, उसके डेटा, हायर एजुकेशन, द प्रॉब्लम इज हायर एजुकेशन में रिसर्च क्यों नहीं हुई. इट्स अ बैरन फील्ड. I mean, I did talk to HEC a few times about doing it, but you know, they're not, you know, we know a lot more about primary school than universities. We know nothing about universities in a rigorous statistical sense. So लड़कियां आगे जा रही हैं. Leaps में भी है कि marriage is getting delayed. That's one of the first things you look at. अच्छा. हाँ, it is. लेकिन अभी the problem is कि अभी जो लीव्स का जो हमारा 2018 का ना, ये अमेरिका में कैंसर रिसर्चर से बात करें ना, तो वो जब भी अपनी फाइंडिंग्स बताते हैं, टॉप कैंसर रिसर्चर वर्ल्ड, फिर वो कहते हैं so much more we need to know. We need more money. Well, there's so much more we need to know. We need more money. ये अभी जो है ये हमारा जो सैंपल है, ये इसको हमें एक दफ़ा फिर फॉलो करना है. वो मुझे थोड़ा सा I'm getting like jitters कि यार कैसे करेंगे. But you see the trend. No, ट्रेंडिंग. अब इसमें मसलन अभी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई भी. बहुत सारे लड़के हैं और लड़कियां जो अभी तक कॉलेज में हैं. उनका ये जो मैं जो 12% का नंबर बता रहा हूँ, ये एक्चुअली अंडर एस्टिमेट. इससे ज़्यादा होगा जब ये कॉलेज वाले जो बच्चे लीव्स में से कॉलेज में गए और वो लेबर मार्केट में आ गए ना, वो जब स्कूल में थे 2018 में, ठीक है. एंड देन वी कैन लुक एट कंप्लीटेड फर्टिलिटी ना. मतलब कंप्लीटेड फर्टिलिटी के लिए यू नीड टू बी एबल टू लुक एट विमेन. मतलब सर्टनली 30-35 साल का तो पता चले ना, फिर जाके समझ आता है कि फर्टिलिटी के साथ क्या हो रहा है. अभी दिस इज टू अर्ली. These girls are mostly in their 20s, these young women. So my sense is that we need to do one more round where we can then actually, you know, that'll close the circle, close the deal, which is the logical end of the LEAPS project is really one more round of the household survey. I think we are ready. We have a good team and we have people and we just have to, you know, himmat करनी है. No, I hope you can do many more rounds. अच्छा, ये हो गया. अब गर्ल्स का क्या मसला है? गर्ल्स आर स्टेइंग लॉन्गर इन स्कूल. अब मैं थोड़ा सा स्पेकुलेट करता हूँ, बट पार्ट ऑफ द रियलिटी इज के व्हेन बॉयज ड्रॉप आउट, यू नो, अ फ्यू थिंग्स हैपन. कि एक तो ये है कि बॉयज के ऊपर people, society is much more permissive towards boys in terms of going outside the house. वो छोटे होते हैं, वो ड्रॉप आउट करते हैं. हमेशा कहते हैं ये लड़के तो खिलंडरे होते हैं, सारा दिन बाहर खेलते रहते हैं. लड़की क्या करती है जी, वो तो घर में बैठी होती है, बंद है ना. लड़की की जो मोबिलिटी है घर से बाहर बहुत कम है. लड़की की फिर आगे जब बड़ी हो जाती है, लड़के के साथ क्या होता है, वो ड्रॉप आउट करता है, वो क्या करता है, वो शहर चला जाता है. मतलब शहर लाहौर को करा, मतलब somebody should do it यार. ये मैं मतलब you know, इतने इंटरेस्टिंग रिसर्च क्वेश्चंस हैं लाहौर में. मतलब यहाँ पे आप देखें, लाहौर इज अ सिटी ऑफ माइग्रेंट्स.
माइग्रेशन ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह पुराना लाहौर शहरी जो हो नहीं, आप जाएंगे, मतलब आप अगर भट्टा चौक जाएं, आप देखेंगे यार वो लोग मुझे कहते हैं कि व्हाई डोंट वी सी विमेन ऑन द स्ट्रीट. गुड क्वेश्चन. But one answer is because there are so many men who are migrants. आप होटलों में जाए ना, इधर बाहर बैठे हो लोगों को, सारा वो चरपाइयों पे जो खाना खा रहे होते हैं सारे आदमी होते हैं. आप कहेंगे यार, is that a sign of gender discrimination? It could be, but I'll tell you a simple answer. A simple answer is that most of these men have come from villages. They don't have kitchens. वो बेचारे बैरकों में रह रहे हैं, उन्हें कहीं तो खाना खाना है ना. वो बेचारे सारे बाहर बैठे होते हैं. So boys migrate. Leaves में migration बहुत ज़्यादा है. हाँ, कोई कराची चला गया, ये चला गया, टेम्पररी माइग्रेशन ये वो. लड़कियों के पास ये ऑप्शन नहीं है. एक बच्चा लड़का जिसके पास इतनी स्किल नहीं है, ठीक है, सेमी स्किल्ड, उसके पास एक कंस्ट्रक्शन में दिहाड़ी बड़े आराम से. मैंने लीव्स के इंटरव्यूज़ किए बहुत ज़्यादा, इन बच्चों के मैंने भी इंटरव्यूज़ किए खुद. मैं लाहौर में जब डीन था लम्स में, तो वो 3 भाई थे, वो हमारे सारे सैंपल में है. वो इधर आ गए, उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन क्रू बना लिया. यू नो, दीज आर सक्सेस स्टोरीज. वो एकदम दिहाड़ी से ऊपर निकल गए. उसने वो यू नो, आई मीन वो थोड़ा सा यू नो दे ऑर्गेनाइज्ड कि वो 3 भाई वो इकट्ठे जाते थे एक जगह पे. तो यू नो 3 आदमी मिल जाए एक वक्त में आराम से. एनीवे, यू नो, सो द होल आइडिया इज कि हमारी जो बॉयज़ की खासतौर में कंस्ट्रक्शन, आई मीन लुक एट DHA, पिंडी में चले जाए, हमारा अटक है सैंपल, वो पिंडी के बाहर है. तो पिंडी से में आप चले जाएं, मतलब इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है यहाँ पे, तो उसमें तो ये बच्चों लड़कों की बहुत खपत हुई है. और वो उनका इंसेंटिव टू ड्रॉप आउट है कि यार वो कहीं ना कहीं उनको मिल जाएगा, ड्राइवर बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. अपॉर्चुनिटीज हैं उनके पास. इट्स सेल्फ डिफीटिंग बिकॉज वो रेट ऑफ रिटर्न तो ज़्यादा नहीं है ना. मतलब व्हाई डू वी टेल किड्स टू स्टे इन स्कूल, बिकॉज थोड़ा सा ठहर जाएं तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे. But socially they have other options. They have options and they get out. They can get out of the village. सबसे बड़ी बात ये है. लड़कियों के पास एक चांस है कि वो गांव से बाहर निकल जाए. लड़कियों के पास वो चांस नहीं है. लड़की बेचारी तभी जाती है जब इसकी शादी होती है. तो शादी इज लाइक, जिसको मैथमेटिक्स में कहते हैं अब्जॉर्बिंग स्टेट. पहले वो एक दफ़ा उसकी शादी हो गई तो बस हो गई. Okay. So no, the point is, लड़की बेचारी के पास क्या है. It's fascinating. अगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, मैं थोड़ा स्पेकुलेट कर रहा हूँ, नॉट स्पीकिंग एज एन, मतलब आई एम यूजिंग अ लैंग्वेज डिफरेंट देन इकोनॉमिस्ट, राइट. मैं पाकिस्तानी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ. वो तो गई. आई मीन there's just no hope for her. क्या होगा उसका? नो दिस इज सीरियस ना. लड़की अगर ड्रॉप आउट करती है तो क्या होगा उसका? सबसे पहले हमारे पास डेटा है भाई, ये है, वी डू टाइम यूज सर्वेस. लड़का जब ड्रॉप आउट करता है तो उसका टाइम इज डिफ्यूज. 5-6 घंटे है ना स्कूल के. ये अगर सोचे 12-13 साल की उम्र में ड्रॉप आउट कर जाते हैं, प्यूबर्टी के आसपास. वो डिफ्यूज्ड है. वो कुछ प्ले टाइम में, आइडल टाइम में, कुछ चाइल्ड लेबर में, कुछ घर में काम में, इस तरह करके. लड़की जब ड्रॉप आउट होती है लीव में, मतलब इट्स स्टनिंग कि तकरीबन 1 to 1 5 घंटे अगर वो स्कूल जाती थी, अब वो 5 घंटे क्या कर रही है? हाउस वर्क. मतलब वो मैं ये कुछ नहीं कर रहा हूँ, मारी गई राइट. मतलब वो घर में बैठी हुई है मदर्स हेल्पर. वो शायद मदर की ज़िंदगी बेहतर हो जाए. आई डोंट नो. देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ इंटर हाउसहोल्ड डायनामिक्स. बट देन व्हाट हैपेंस? अर्ली मैरिज, राइट. हमारे एक टर्म है, राइट, यू मस्ट नो दिस. बेबी लड़की घर बैठी हुई है. Right? I mean, what does that mean? No, she's not sitting, I tell you that. Obviously, हम तो we're talking about girls sitting in a village, but ये हम अपनी भी we also see this around us कि जी लड़कियां जो हैं वो बैचलर्स करती हैं, फिर कहती हैं मास्टर्स करना है, PhD करनी है, शादी से भागने के लिए. नहीं, शादी से भागने के लिए नहीं. मतलब देखिए, मतलब उसको उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है. सो दिस इज द बिग क्वेश्चन. हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जो लड़कियों की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है पाकिस्तान में, जनरली बियॉन्ड लीव जो डेटा है, इज वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड. वर्स्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है. वो अफ्रीका के मुल्कों में ज़्यादा है, हर जगह पे ज़्यादा है. इंडिया की भी बहुत कम है. सो देयर समथिंग कल्चरल, पता नहीं क्या है, लेकिन इंडिया के हमारे से ज़्यादा है. लेकिन फिर भी गिवन देयर इनकम्स एंड ऑल दैट कम है. सो द क्वेश्चन इज कि वो लड़की तब ही लेबर फोर्स में जाती है जब वो थोड़ा सा पढ़ लिख जाती है. हमारे जो नंबर्स हैं वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के लीव में, वो लड़की बेसिकली 10वीं जमात तक अगर लड़की है तो वो तकरीबन 0 है. I mean, it's like a flat line. I mean, you don't see the data that often. ऊपर जाके होती है वो थोड़ी सी, उनके लिए क्या चीज़ खुली हुई है? टीचिंग. अब टीचिंग बहुत बड़ी है. आई थिंक गुड न्यूज़, देयर आर मिलियंस ऑफ किड्स इन पाकिस्तान जो भी स्कूलों में जा रहे हैं. तो बच्चों की तादाद
अगर आज भी हम बच्चे पैदा करने बंद कर दें तो लेकिन वो डेमोग्राफिक मोमेंटम वो पिछली जनरेशन में इतने बच्चे हैं एंड देयर सो मेनी वीमेन इन चाइल्ड बेयरिंग एज कि वो बढ़ते ही जाएगा ना, अगले 20-30 साल तो होगा. सो माय क्वेश्चन इज कि अब ये प्राइवेट स्कूल खुले हैं, ये प्राइवेट स्कूल क्यों चले हैं? ये प्राइवेट स्कूल इसलिए चले हैं कि वो लड़की को गांव के अंदर ही एक एम्प्लॉयमेंट मिल गई है. पैसे काफ़ी कम देते हैं लेकिन एक एम्प्लॉयमेंट गांव के अंदर है. सो अब ये लेबर फोर्स जब ये खुले, अगर तो दिस इज वेयर आई थिंक पाकिस्तान इज, unless it creates an environment, an enabling environment where now we are getting literally capable, modestly educated young women and men, but women for sure, we're talking about women. Now the question is, what are we going to do? अब वो दो चीज़ें होनी है, एक लेबर फोर्स की कुछ constraints and how do we think about labor force constraints? I think that's very important. The second is, what is called marriage and family formation. मतलब सारी दुनिया में लड़कियों की शादियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं. So now the question is, my sense is कि how do we as a society navigate this transition? ये पाकिस्तान इस वक्त एक potentially golden period में है. ये पहली दफ़ा हुआ है कि अब हमारे पास, देखो अब हमारे पास लड़कियाँ स्कूल में हैं जिनकी माएँ भी पढ़ी लिखी हैं. ये कभी नहीं हुआ यहाँ, कभी नहीं हुआ. 1 जनवरी नहीं कहते, 1 जनवरी अमेरिका में टर्मिनल समारोह होती है, वो कॉलेज की कहते हैं. इससे पहले हर बच्ची जो स्कूल में आती थी वो 1 जनवरी थी, उसकी माँ अनपढ़ होती थी. ठीक है, अब ये बच्चियाँ स्कूल में आ रही हैं कि माँ पढ़ी लिखी है. अब इनको टीचर मिल रहे हैं, द पूल ऑफ एजुकेटेड वुमेन हु कैन सर्व एज टीचर्स, वो भी एजुकेशन बढ़ रही है. हमारे प्राइवेट स्कूल में 2004 में 10वीं 12वीं की ज़्यादातर टीचरें थी, अब तकरीबन हर टीचर BA पास है. तो आपको BA पास लड़कियों की एक तादाद सामने आ रही है. सो एजुकेशन क्वालिटी भी बढ़ेगी, माएँ भी पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी होनी शुरू हो रही है ना, मोर एंड मोर. सो माई सेंस इज के अगर हम लेबर मार्केट्स के अंदर एक if we can reduce the frictions, that's the biggest friction in Pakistan right now. If we can reduce that friction, and then family formation, family norms भी बदल रहे हैं शादी के ऊपर, right? और ख़ास तौर पे दो चीज़ें मैं कहूँगा कि इस सोसाइटी में अभी तक कोई सही कंसेप्चुलाइजेशन नहीं हुई हुई कि एक यंग लड़की है इन हर 20s, जो कि हमारा लीप्स का सैंपल है, सिंगल, उसको क्या करें? मतलब ये है कि what do we do? How does society think of a young woman who is now reasonably educated और so called घर बैठी हुई है? I mean, something's got to give, right? It can't continue like that. अब शादियाँ, दूसरे सैंपल में क्या है? Again, stunning number. What do you think is the percentage of cousin marriages? तुम्हें पता है, मैंने कल कहा था, but अगर किसी और से मैं पूछूँ, right? In Pakistan, in Leaps, if a girl is not educated, आप कह रहे हैं ना कि गर्ल जो educated नहीं होती वो गई के साथ, 70% of them are marrying their first cousin. हमारे डेटा में 70%. मैंने I gave this talk in Princeton और वो सारी डिस्कशन इसी पे हुई कि वो उनको यकीन नहीं आ रहा था ये नंबर. अच्छा, but I don't know, glass is half full, half empty. When a girl hits 12 grades, the number falls to around 40, 35, 40. So big drop. That's a big drop. So the opportunity जो है वो बढ़ती है. So my sense is कि ये चीज़ें हमने देखनी है. ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान में fertility गिर रही है लेकिन बहुत slow. My sense is कि as we look at this Leaps generation, I think this is the generation that is actually the ones who are going to lead Pakistan. ये generation पहली है. So there's good news. I think there is good news. मतलब ये है कि देखिए, मैं स्टेज पे क्यों, आप स्टेज पे क्यों हैं, आप स्टेज पे क्यों, आपकी माँ पढ़ी लिखी थी, इसी वजह से आप इस स्टेज में आई है ना. माँ बाप मुँह ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे पहले, माँ बाप ज़्यादा होते थे, माँ कम थी. And probably your grandma was also educated, right? So my sense is कि दो generations जब पढ़ जाती हैं तब जाके तीसरी जनरेशन में आपको एक genuine फ़र्क नज़र आना शुरू होता है. अब हम एक स्टेप तो आगे आ गए हैं. So I'm very positive. Challenge, we'll end on this positive note for today. Thank you so much, Tahir, for your time.